Hello everyone, welcome to your favorite Byju's 9th and 10th channel. My name is Khushbu and today's session is basically a practice session. A practice session based on speed, distance and time problems. So a lot of you have demanded for a practice session on board problems, upstream, downstream problems. So you asked for it and here I am. So basically इस सेशन में specifically जो questions होंगे that will be based on upstream downstream problems that are there in your NCERT textbook. So before I start, make sure that you have subscribed to the channel so that you don't miss out on the important content. Now without wasting any more time here, let's get started. So before we actually start off with the questions, let's first understand the basic terminology that we see here in this topic, like upstream, downstream, speed of boat in still water, speed of the stream. So all these things, what is this actually? कब कहाँ पर क्या use करना है? Let's first understand that. And to understand this, we have Rahul and Rohan with us. Now Rohan is the little one and Rahul, yes, that's the elder one. Okay, so obviously now it's their vacation time, so they have gone out for fishing. So Rohan says, what a bright sunny day for fishing. Yeah. And Rahul says, yes, the current of the river is suitable for fishing. Now Rohan is a little one. He doesn't understand this terminology, These fancy words, what this current is actually. Kya hota hai ye current? So Rahul says, a current in a river or stream is basically the flow of water. When we say current, right, this is basically the water flow of water which is influenced by the gravity. Right, gravity के according speed में changes आएंगे. As the water moves downhill to reduce its potential energy. So based on gravity, that means जो water का flow होगा उसकी speed change हो रही है. So Rohan says, will this current affect the speed of the fisherman's boat? अगर ये current की speed change होती है, अगर ये water का flow change होता है, इसकी speed change होती है, तो fisherman की जो boat होती है, क्या उसकी speed भी इससे affect होगी? क्या उस पर भी इसका कोई effect आता है? So Rahul says, yes, it is the same as us walking. So पानी का example ना लेके, let's first understand. Let's suppose that we are walking on a plain road. आप plane पे चल रहे हैं, right? So plane पे चल रहे हैं और अगर आपको speed distance time, we all are aware of this formula, right? So speed distance time के अंदर we can see three physical quantities. One is speed, second is distance, third is time. कोई भी दो quantities पता हो तो we can find out the third one very easily, right? और planes पे कोई खास effect भी नहीं आएगा. When you are walking, so अगर आपकी स्पीड तेज है तो टाइम कम लगेगा, आपकी स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, कंसिडरिंग कि डिस्टेंस हमारा सेम है. सो स्पीड पे कोई इफेक्ट, आपकी इस चीज पर कोई इफेक्ट नहीं आता. बट सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स या फिर अपस्टेयर्स से उतर रहे हैं, यू आर गोइंग डाउनस्टेयर्स. लेट्स सपोज इफ आई कंसिडर द फर्स्ट केस व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स, उस केस में क्या होता है, थोड़ा सा हमें एफर्ट लगाना पड़ता है व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अप, राइट? एफर्ट लगाना पड़ता है. और अगर लेट्स सपोज मैं कहूं कि बहुत सारी स्टेयर्स आपको चढ़ के जानी है, काफी सारी, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम आप थक जाओगे, यू गेट टायर्ड बिकॉज इतनी आप अगेंस्ट ग्रेविटी ही जा रहे हैं एक तरह से. और उस केस में क्या हो रहा है, हमारी स्पीड रिड्यूस होती जा रही है और हमें ज्यादा टाइम लग रहा है. सो आई कैन से कि स्पीड और टाइम यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं. बट व्हेन आई एम गोइंग डाउन, तो वहां पर क्या हो रहा है, हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है बिकॉज हमें उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता. सो कम टाइम में हम आराम से नीचे उतर जाएंगे. सो इस केस में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल केस हो गया एक तरह से. बट ये सारी सिचुएशन, मैं प्लेन्स की बात कर रही हूँ, मैं स्टेयर्स का केस ले रही हूँ, लेकिन वाटर का केस इससे बिल्कुल डिफरेंट है. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी, वहां तो हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ा और दैट्स डन. यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी का हम यूज करते हैं, जैसे कि स्टिल वाटर. वी ऑल नो व्हाट स्टिल मीन्स. स्टिल मीन्स स्टेशनरी, जो रुका हुआ है, राइट? सो दैट मीन्स जब हम स्टिल वाटर की बात करते हैं, दैट मीन्स द वाटर इज स्टेशनरी, वाटर रुका हुआ है. एंड द स्पीड ऑफ द वाटर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं उस केस में, वी आर कंसिडरिंग दैट टू बी जीरो, कि वाटर की स्पीड जीरो है. सो अगर इस केस में हम बोलूं व्हाट इज द नेट स्पीड ऑफ द बोट, दैट मीन्स द टोटल स्पीड ऑफ द बोट, वो क्या होगी, that's nothing but speed of boat in still water, because water तो रुका हुआ है, right? So अगर मुझे बोट की स्पीड निकालनी है, so it is nothing but the speed of boat in still water. अगर आप बोट की स्पीड की बात करोगे तो आप बोलोगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. बट लेट्स सपोज जब हम इस टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं डाउनस्ट्रीम, मतलब लेट्स सपोज अगर पानी का फ्लो इस साइड है और बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस तरफ पानी जा रहा है, दैट मीन्स द बोट इज फ्लोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम. दोनों का सेम डायरेक्शन है, राइट? जब दोनों का सेम डायरेक्शन होता है, वी कॉल इट डाउनस्ट्रीम. और इस केस में क्या होगा, एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी. आई मीन यू कैन जस्ट विजुअलाइज दिस, यू कैन इमेजिन दिस. अगर आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो पानी की तरफ से आपको एक पुश ही मिल रहा है, बल्कि इन द सेम डायरेक्शन, कोई रेजिस्टेंस नहीं है,
राइट। सो नेट स्पीड आपकी बोट की वहां क्या बन जाती है, इन दैट केस जो टोटल स्पीड, द नेट स्पीड आपकी बोट की जो होगी, दैट वुड बी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो कि अगर हम स्टेशनरी के हिसाब से कंसिडर करते, बट नाउ द वाटर इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज द बोट प्लस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो आपके पास ओवरऑल स्पीड आती है ऑफ द बोट इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम। जब हम डाउन स्ट्रीम के केस में बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम में याद रखना है कि आपका फ्लो जिस डायरेक्शन में आप हो उसी डायरेक्शन में वाटर है, सेम डायरेक्शन। व्हाट अबाउट अपस्ट्रीम? सो ऑब्वियसली अगर दूसरा केस है तो वो उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। इफ द बोट इज फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम इस साइड जा रही है तो बोट इस साइड है। यू कैन कंसिडर दिस केस, अगर आपने कभी आपने बोट में बैठे हैं एंड यू हैव ऑब्जर्व दिस थिंग कि हाँ अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उसमें बहुत फोर्स लगती है, बिकॉज एक रेजिस्टिव फोर्स होगी ऑपोजिट साइड से, राइट। आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो रेजिस्टेंस तो होगा। सिमिलरली अगर आप विंड का केस कंसिडर करें, किसी दिन लेट्स सपोज अगर विंड स्पीड बहुत ज्यादा है एंड यू आर साइक्लिंग, अगर विंड की स्पीड इस साइड है और साइक्लिंग आप इस तरफ उस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बहुत एफर्ट लगती है, एक रेजिस्टिव फोर्स आ रही है सामने से, रेजिस्टेंस लग रही है बाय द एयर। सो इस केस को आप क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट अपस्ट्रीम, जब ऑपोजिट डायरेक्शंस हो जाएंगी हमारी। सो इन दिस केस द नेट स्पीड ऑफ द बोट इज बेसिकली कॉल्ड द अपस्ट्रीम स्पीड। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इट? इट्स बेसिकली द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। माइनस हो रही है, फोर्स एड अप नहीं हो, आई मीन टोटल स्पीड एड अप नहीं हो रही है, यहां पर माइनस हो रही है, स्पीड कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट जो रेजिस्टेंस लग रही है उसकी वजह से। So basically that was about upstream और downstream होता क्या है। Now there are certain formulas that we need to remember. ये formulas अगर आप याद रख सकते हो, it will be the, I mean, question solving में it will become a lot more simpler for you. The first is speed of boat in still water. Still water के अंदर if you have to find out the speed of boat, it is basically downstream speed plus upstream speed divide by 2, इन दोनों का एवरेज लेना है। बट स्पीड ऑफ स्ट्रीम के केस में डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। डाउनस्ट्रीम स्पीड हमेशा ज्यादा होगी बिकॉज वो टोटल करके आई है, अपस्ट्रीम स्पीड कम ही होगी, राइट। तो इन दोनों केसेस में, फर्स्ट केस में आपने एवरेज लिया है, यू एड देम अप डिवाइड बाय 2, सेकंड केस में आपने सब्ट्रैक्ट करा है डिवाइड बाय 2। जस्ट रिमेंबर दीज फॉर्मुलाज। नाउ लेट्स ट्राई आउट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस सो दैट वी गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो इन 1 hour a boat goes 13 kilometer in the direction of the stream. In the direction of the stream है, that means this is the downstream, same direction है। आप इन्हीं keywords से आप you can understand कि क्या दिया हुआ है। 7 kilometer per hour against the direction of stream, against that means this is upstream given, speed of upstream. What will be the speed of the boat in still water? Now if you remember the formulas you will be able to do it very quickly. ये तो mentally हो सकता है। तो downstream speed हमें given है 13 kilometers per hour, upstream speed given है 7 kilometers per hour. We need the formula of speed of boat in still water, that's downstream speed plus upstream speed divide by 2. Let's plug in all the values and we get 20 upon 2, which is 10 kilometer per hour. This was a pretty simple question. Now let's move ahead. Let's try out another one. A person can swim in water with a speed of 13 kilometer per hour in still water. Right? ये हमें दी है speed of 13 kilometer per hour still water में। If the speed of the stream is 4 kilometer per hour, clearly दिया हुआ है क्या है, this is speed of stream. What will be the time taken by the person to go 68 kilometers downstream? हमें time निकालना है, but किस केस में निकालना है? Downstream के केस में, and the distance is given. So what are we given here? First of all, distance is given, that's 68 kilometers. Downstream speed हम calculate कर सकते हैं because we have the speed. Right? We have the speed in still water and speed of stream भी given है, हम दोनों को add करते हैं, we get 17 kilometers per hour. Downstream की speed आ गई। Now simple सा formula, speed distance time को use करते हुए, इस relation का use करते हुए I can find out the time. So दो quantities आपको यहाँ पे given है, distance and speed, you can find out time here. So that's going to be 68 upon 17, which is 4 hours. So इस तरीके से हमने इसको simply calculate कर लिया। Let's move ahead to another one. A woman can row upstream at 16 kilometer per hour. Definitely upstream speed है, clearly दिया हुआ है इस question में भी। Downstream at 26 kilometers per hour. So downstream speed भी हमें given है। What is the speed of the stream? So basically upstream speed given है, that's 16 kilometer per hour. Downstream speed हमें given है, and speed of stream के लिए we have direct formula. That is downstream speed minus upstream speed divide by 2. Let's put in all the values. 26 minus 16 by 2, you get 10 by 2, which is 5 kilometers per hour. Pretty simple question. Generally बच्चे जहाँ confuse होते हैं इन questions में, it's not the solving part. I know कि questions की solving काफी बड़ी होती है इनमें, but उनको confusion यही होता है, सबसे बड़ी गलती initial steps पे ही कर देते हैं जब वो equation frame कर रहे हैं, जब वो upstream और downstream की speed को assume कर रहे हैं तभी गलती कर देते हैं। So first ये basic concept clear होना बहुत जरूरी है, and MCQs के लिए these questions will be
super useful for you. Let's move ahead now to next question. A boat is moving 2 kilometers against the current of the stream. डायरेक्शन ऑपोजिट है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, डिस्टेंस 2 किलोमीटर्स है इन 1 आवर. सो ये अगेंस्ट द स्ट्रीम दिया है, दैट मीन्स ये अपस्ट्रीम का केस हो गया. मूव्स 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. अब ये इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट है, मतलब अलोंग द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, दैट मीन्स ये हमारे पास हो गया डाउन स्ट्रीम वाला केस. एंड इसमें डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, टाइम इज 10 मिनट्स, मिनट्स में गिवन है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक, दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट टाइम हियर. टेक द बोट टू गो 5 किलोमीटर्स, डिस्टेंस इज गिवन, टाइम निकालना है, डिस्टेंस इज गिवन इन स्टेशनरी वाटर. व्हेन इट सेज स्टेशनरी वाटर, दैट मीन्स हमारे पास स्पीड का आइडिया है इसमें. ओके, सो अपस्ट्रीम स्पीड हमें गिवन है, दैट्स 2 किलोमीटर पर आवर बिकॉज अगेंस्ट द करंट था, तो अपस्ट्रीम का केस हुआ. एंड टाइम भी हमें गिवन था इस केस में 1 आवर, राइट. सो हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड वो भी हमें गिवन थी. डाउनस्ट्रीम स्पीड के लिए वी कैन कैलकुलेट दिस बिकॉज वी हैव द डिस्टेंस, वी हैव द टाइम. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, आई कैन कैलकुलेट इट. बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि सब कुछ यहाँ पे किलोमीटर्स और आवर्स में चल रहा है एंड दिस इज 10 मिनट्स. सो इसको 10 नहीं, इसको आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए वी डिवाइड बाय 60. दैट्स वाई अपने इस टाइम को यहाँ पे 60 से डिवाइड करा है, सो दैट आई गेट 6 किलोमीटर्स पर आवर. सो आई हैव द डाउनस्ट्रीम स्पीड इन दिस केस. अपस्ट्रीम स्पीड भी आ गई, डाउनस्ट्रीम स्पीड भी आ गई, दोनों निकाल लिया. अब इस केस के लिए डिस्टेंस है मेरे पास, टाइम मुझे फाइंड करना है. आई जस्ट नीड द स्पीड, राइट, इन स्टेशनरी वाटर. सो स्पीड इन स्टिल वाटर इज डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2. लेट्स पुट इन ऑल द वैल्यूज. नाउ यू हैव द स्पीड इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर की स्पीड आ गई है. अब सिंपली इस फॉर्मूला में जो छोटा सा फॉर्मूला हमारा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, जस्ट पुट इन देयर एंड यू गेट 5/4 आवर्स. दैट मीन्स 1/4 आवर्स. That was a pretty simple one, right? So in questions के लिए एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है हमें. केसेस बेसिकली क्वेश्चन पढ़ के आपको कीवर्ड समझ आने चाहिए. कौन सा केस अपस्ट्रीम का है, कौन सा केस डाउनस्ट्रीम का है, कब आपको स्टिल वाटर की स्पीड दी है, कब आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी है, और वो 2 फॉर्मूलाज जो मैंने आपको दिखाए हैं, जस्ट रिमेंबर दोस फॉर्मूलाज. So time is 1 hour 15 minutes finally. All right students, so that's it from my end. I hope ये जो टॉपिक था अभी आपको क्लियर होगा, एटलीस्ट इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. आपकी बुक में जो क्वेश्चंस है वहाँ पे प्रॉपर इक्वेशंस फ्रेम होती हैं. सो इक्वेशन अगर आपसे फ्रेम हो जाती है उसके बाद इट्स जस्ट नॉर्मल सॉल्विंग, जैसे कि बाकी नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस में होता है, वेयर इन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज फॉर द अननोन वेरिएबल्स. सो इक्वेशन फ्रेम करने पर पहले आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, बिकॉज बाकी सॉल्विंग वाला पार्ट यू विल बी एबल टू डू इट इजीली. सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल था. इफ यू वांट अस टू डू एनी मोर वीडियोस, कोई भी टॉपिक आपको स्पेसिफिक लगता है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.